So good evening students. Let's start with this sum. Yesterday I have given this sum to all of you as a homework. हम इसको क्रॉस चेक करते हैं कि आपने जो किया वो सही किया है या गलत किया है. So let's cross check each and everything. Obviously I told you to do this by modern method as well as traditional method. मैंने ये आपको दोनों मेथड से करने के लिए बोला था. ट्रेडिशनल हो या मॉडर्न हो तो हमें ये दोनों मेथड से सम सॉल्व करना था. So let's cross check it my dear. Whatever you have done is right or wrong, we need to check it, right? चलिए दोनों से क्रॉस चेक करते हैं. आपको ये सारे आंसर बताने. So I hope you are ready. You have gone through all the rules there for traditional method as well as modern method. आपने ट्रेडिशनल और मॉडर्न गो थ्रू किया ही होगा. If traditional, it is real, nominal and personal account, identifying that all assets are real accounts, all liabilities and name of the parties are personal accounts, and all expenses, losses, incomes and gains of the business are nominal accounts. उसी के साथ हमने क्या देखा था बेटा? That in terms of modern method, we need to identify the categories of various expenses and losses, incomes and gains of the business, along with assets, properties and possessions of the business, and then liabilities of business. तो इस तरह से हमें ये सारे कैटेगरी करने हैं और उसके हिसाब से उसके रूल देखने हैं. तो मॉडर्न का रूल क्या है? इंक्रीज इन असेट्स along with expenses and losses is debited, whereas decrease in assets along with expenses and losses is credited. बराबर है क्या बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? इंक्रीज इन लायबिलिटी and income and gain is credited, decrease in liability and income and gain is debited. That is modern method के रूल है. ट्रेडिशनल के रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस. और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है बेटा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड gains of the business. So these are the rules of real account, nominal account and personal account, and we have seen the rule as well as for modern method. चलिए solve करते हैं one by one. So how many columns you must have made? Column number 1 is serial number, that is transaction or date 1 2 3 जो भी है, right? उसके बाद aspects, 2 aspects involved, usually 2 aspects होते हैं या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना? उसके बाद accounts impacted can be at least 2 or more than 2. Then obviously the type of accounts, अगर traditional method है तो real, nominal, personal. modern method है तो फिर asset है क्या, liability है, income है या gain है, expenses है या loss है. on that basis the categories are done. और उसी के साथ हम फिर रूल अप्लाई करेंगे ट्रेडिशनल में रियल, नॉमिनल, पर्सनल का, और मॉडर्न में asset, liability, income and gains, expenses and losses. On the basis of that we are going to apply the rule and solve the question. तो चलिए सबसे पहले पूछते हैं स्नेहा को. स्नेहा बोलिए पहला ट्रांजैक्शन बेटा. मिस्टर मेघराज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. So listen to her everybody, she will be telling the 2 aspects. Yes स्नेहा, yes मेघराज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. इसमें 2 aspect क्या है बेटा? Yeah, that is correct. The 2 aspects are, number 1, that is business is started with cash. तो सबसे पहले क्या आएगा? Cash comes in the business and owner is the giver और proprietor is the giver. owner बुलाते हैं या proprietor बुलाते हैं? owner, proprietor क्या होता है? I told you that there are 5 forms of business organization, जिसमें सबसे पहला फॉर्म है, आप मार्केट में देखते होंगे ना, तो there are a number of businesses जो आपको यूजुअली ज्यादा दिखते हैं आपके आजू बाजू में. वो कंपनियां तो नहीं दिखेगी आपको दिखते हैं या तो पार्टनरशिप फॉर्म या तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न. आप बोले ये क्या है सर? दीज आर नथिंग बट द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन माय डियर. तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब क्या है? द बिजनेस विच इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ सिंगल पर्सन. ऑल प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड बाय दैट पर्सन, क्योंकि वो अकेला ही मालिक है, वही सब देखेगा. सो आई एम डिस्कसिंग विथ ऑल ऑफ यू दिस वेरी इंपॉर्टेंट part which is called as forms of business organization. मार्केट में कौन से बिजनेसेस आपको दिखते हैं ये पता होना चाहिए. अगर ये पता है तो बड़ा आसान हो जाता है समझना बिजनेसेस को. So forms of business organization. Number 1 is sole trading concern. What is this? A business which is owned and managed by a single person is called as sole trading concern.
सारा कैपिटल ये डालेगा, सारा प्रॉफिट उसका होगा, सारा लॉस भी उसी का होगा. नाउ द पेक्यूलियर थिंग अबाउट दिस वन इज, द टिपिकल थिंग अबाउट दिस वन इज नथिंग बट दैट द लायबिलिटी ऑफ द ओनर इज अनलिमिटेड. मतलब अगर आपको लॉस हो गया बिजनेस में तो ओनर के पर्सनल असेट भी अटैच किए जा सकते हैं. क्यों? क्योंकि किससे रिकवर करेंगे अगर लॉस हुआ तो? और तो कोई है नहीं, आप ही सर्वे सर्वा हो बिजनेस के, आप ही ओनर हो. So that is how the liability of the sole trader is unlimited. और वही ओनर है, वही सारा कुछ करता है, वही मैनेजर है, वही सब कुछ है, करता धरता as far as the business is concerned. Okay? अगला देखते हैं बेटा. अगला क्या है? Is nothing but the, इसके आगे हमें देखना है second form of business organization and that is nothing but the पार्टनरशिप फॉर्म आइडिया. इसके बाद क्या है? पार्टनरशिप फॉर्म है. दूसरा जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसको हम पार्टनरशिप फॉर्म बुलाते हैं. पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या है? अ बिजनेस विच इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय टू और मोर देन टू पीपल. व्हेन टू पीपल कम टुगेदर एंड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ऑब्वियसली पर्पज इज मेकिंग प्रॉफिट. वहां पे भी पर्पज क्या है? प्रॉफिट कमाना ही उसका मोटिव है. सो दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फॉर्म. तो उसको हम क्या बुलाते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म बुलाते हैं. सो सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड सेकेंड इज पार्टनरशिप फॉर्म आइडिया. तो याद रखिए पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या है? व्हेन टू और मोर देन टू पीपल कम टुगेदर एंड स्टार्ट अ बिजनेस, ऑब्वियसली पर्पज इज मेकिंग प्रॉफिट. तो उसको हम क्या बुलाते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म. देयर हैज टू बी टू पार्टीज टू द एग्रीमेंट. सिमिलरली देयर हैज टू बी टू पार्टीज टू अ पार्टनरशिप फॉर्म मिनिमम. जब आप एक सोल ट्रेडिंग चालू करते हैं तो वहां पे एक ही इंसान है, लेकिन जब आप पार्टनरशिप फॉर्म चालू करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे मिनिमम कितने इंसान है बेटा? 2 इंसान है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप फॉर्म. सो दिस इज सेकंड काइंड ऑफ बिजनेस. नाउ द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म इज लिमिटेड और अनलिमिटेड. ये आपको गूगल बाबा से पूछना है और मुझे बोलना है कल, है ना? कुछ तो आपके लिए भी रखता हूं, वरना सब कुछ तो मैं ही बोल दूंगा. द लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड. Now the profit and losses in a partnership firm are shared in the ratio of capital contribution by the partners. मान लीजिए मैं, अमर, राजवीर, अंश, रुचिका, ये 5 पार्टनर है और सबने 20% कैपिटल दिया है. 20% का मतलब क्या है? 1/5. मतलब सब लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे 1/5 रेशियो में. तो ऑब्वियसली लॉस हुआ तो भी हमको शेयर करना पड़ेगा 1/5 रेशियो में. So we are going to share the profit and losses in the capital contribution ratio, my dear. तो जितना कैपिटल है उसी के फॉर्म में हम अपना प्रॉफिट लॉस भी बियर करेंगे. So that is what a partnership form. There has to be at least 2 partners. More than 2 can be there. Number 3 is a very popular one, my dear. That is called as joint stock companies. ये आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इस पे सारी कंपनीज दिखेंगी. रिलायंस, टाटा, इंफोसिस, HUL, है ना, टाटा स्टील, PNG, ये सारे कंपनीज है. दीज आर जॉइंट स्टॉक कंपनीज. डोंट बी कंफ्यूज्ड. जब हम एक पार्टनरशिप फॉर्म बुलाते हैं, सोल ट्रेडिंग कंसर्न बुलाते हैं, तो वहां पे कैपिटल है कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर, बाय अ सिंगल ओनर, बाय 2 पीपल और मोर देन 2 पीपल इन अ पार्टनरशिप फॉर्म. जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या है? बहुत सारा ओनर है. कैन वी परचेस टुडे शेयर्स ऑफ इंफोसिस? Answer is yes, but in between 9:15 to 3:30 मार्केट के टाइमिंग में. और what is the other condition to be fulfilled to purchase shares? हाँ, पैसे होनी चाहिए, है ना? बिना पैसे के तो हो नहीं सकता कि आपके पास पैसे ही नहीं शेयर खरीदने चले. सिर्फ पैसे होके भी नहीं चलेगा बेटा, और भी कुछ लगता है. क्या लगता है? बैंक अकाउंट लगता है क्या? नहीं. यस, दैट इज करेक्ट. व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ डीमैट अकाउंट, माय डियर. तो आपको क्या लगेगा? एक डीमैट अकाउंट भी आपको ओपन करना पड़ेगा. अब ये डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट इज नथिंग बट डीमटेरियलाइज्ड. डीमटेरियलाइज्ड मींस पेपरलेस फॉर्म ऑफ शेयर्स, माय डियर. इसको क्या बुलाते हैं? पेपरलेस फॉर्म ऑफ शेयर्स. पेपरलेस फॉर्म ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है? दैट द शेयर्स आर ट्रेडेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बेसिस. पेपरलेस ट्रेडिंग जिसको बुलाते हैं. जैसे आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो मैसेज आता है अकाउंट गेट्स क्रेडिटेड, और पैसे आप खर्च करते हैं तो मैसेज आता है अकाउंट गेट्स डेबिटेड. वैसे भी शेयर खरीदेंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में, और अगर आप बेचेंगे तो डेबिट हो जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट से. तो इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बोलते हैं, पेपरलेस फॉर्म बोलते हैं. पहले फिजिकल सर्टिफिकेट आते थे, वो कहीं पे घूम गए तो दिक्कत होती थी, है ना? कोई उसको चुरा के ले गया तो भी प्रॉब्लम होता था. बट अभी ऐसा कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रिजर्व किए जाते हैं. पेपरलेस फॉर्म है मतलब वहां पे
फिजिकल हैंडलिंग का और कुछ लॉस होने का चांस ही नहीं है, तो उसको डीमैट अकाउंट बुलाते हैं। डीमैट का मतलब है डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की हम बात कर रहे थे, अ कंपनी विच इज स्टार्टेड विथ जॉइंटली ऑफ सो मेनी पीपल्स स्टॉक कंट्रीब्यूशन और कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी माय डियर। तो देखिए जॉइंट स्टॉक मतलब जॉइंट का स्टॉक है। जॉइंट का मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल हु वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ द कंपनी एंड हु वुड लाइक टू बी ओनर। अब कल मैं रिलायंस के शेयर खरीदूंगा तो ऐसा थोड़ी होगा कि मैं इमीडिएटली मुकेश अंबानी को बोलने जाऊंगा कि चलो मैं बताता हूं बिजनेस कैसे करना है। एब्सोल्युटली नॉट। वैसा बोलने के लिए कम से कम मैंने 20% शेयर होल्डिंग लेनी चाहिए। मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जिसको बुलाते हैं, सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग बुलाते हैं, तो उसके लिए कितना परचेस करना चाहिए बेटा? 20%। वरना कुछ 10 शेयर खरीद करके, 100 खरीद के, 1000 खरीद के तो कुछ होगा नहीं। कम से कम 20% शेयर होल्डिंग इज कॉल्ड एज सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग एंड देन आई कैन श्योरली हैव अ मीटिंग। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या है? वेयर स्टॉक इज जॉइंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड। स्टॉक का मतलब क्या है? कैपिटल। वेयर कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड जॉइंटली बाय सो मेनी पीपल एंड द कंपनी स्टार्टेड इज कॉल्ड एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब शुरुआत से ही बहुत सारे लोग होते हैं क्या? नॉट नेसेसरी। शुरुआत में सिर्फ धीरूभाई अंबानी ने चालू किया था कंपनी 15,000 रुपए में। कितनी मेहनत की उन्होंने इन 1980s। तो अभी देखिए कहां से कहां है रिलायंस। सो दैट वे अराउंड यू नीड टू पुट कंसिस्टेंट एफर्ट्स with so much of passion and focus, then only success will be yours, my dear. So it is a joint stock company where stock is jointly contributed, capital is jointly contributed by the people and the company is started. So that is joint stock company. Now, the one thing very peculiar about joint stock company, that liability of the shareholders, क्योंकि joint stock companies में shareholder होते हैं बेटा, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स होते हैं, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में प्रोप्राइटर होता है, ओनर होता है, वही मैनेजर होता है क्योंकि सिंगल बंदा है। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स होते हैं 2 या 2 से ज्यादा। जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है? शेयर होल्डर्स। द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग। यानी अगर मैंने 1% शेयर खरीदा है तो मुझे 1% का ही लॉस हो सकता है। मतलब जितने मेरे शेयर्स है वो ही 0 हो जाएंगे और तो 1 पैसा भी मुझे घर से देने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज लॉस इज दैट लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स in case of a joint stock company is limited to their ownership or shareholding. So that is what the difference between sole trading concern, partnership firm, joint stock company. joint stock company का मैंने आप पे छोड़ा है, ये डिस्कस करना जरूरी है बेटा और यही आपके सिलेबस का पार्ट है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हो सकता है आप सीखिए, बीकॉम, बीबीए में या फिर एमबीए में, ये आपको कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। ये सीखे बिना आगे जा नहीं सकते। फोर्थ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। A family business run by Karta and then carried on by the descendants, you can say, and which are started by your ancestors. यानी आपके पूर्वजों ने चालू किया और आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी ये बिजनेस चालू होगा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं? बोलिए बेटा। अंश, क्या एग्जाम्पल्स है HUF के? कोई एग्जाम्पल HUF पता है? यस, दैट इज वेरी गुड। दैट इज व्हाट? हल्दीराम। हल्दीराम आपका क्या है? HUF है। उसके साथ पूना का चितई बंधु, ये भी HUF है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, फैमिली बिजनेस है बेटा, ये बाहर देते ही नहीं। चितई बंधु एंड सन्स, क्योंकि ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। फैमिली बिजनेस रन बाय करता। करता मींस जो सबसे वहां पे रिस्पॉन्सिबल इंसान है, फैमिली का सबसे बड़ा है, जो बिजनेस के सारे फैसले लेगा। ऑब्वियसली बाकी मेंबर को भी वो पूछेगा बट फाइनल से विल बी हिज। सो दैट इज व्हाट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये फोर्थ फॉर्म ऑफ बिजनेस है। और लास्ट जो कभी कभार दिखता है आपको, आप पूना में अगर कहीं पे आम वगैरह खरीदने गए होंगे तो ग्राहक पेट ऐसी एक चीज है ट्रक रोड पे बेटा, बिल्कुल एसपी कॉलेज के सामने, एंड दैट इज नथिंग बट कोऑपरेटिव फॉर्म्स। कोऑपरेटिव फॉर्म्स, सो दैट इज ग्राहक पेट, आप देख सकते हैं पूना में। इसका पेक्युलरिटी क्या है, टिपिकलनेस क्या है? तो दिस इज देयर फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट लोअर प्राइसेस। तो उसको हम क्या बुलाते हैं? कोऑपरेटिव सर्विस, कोऑपरेटिव फॉर्म्स। तो ग्राहक पेट पूना में है। कोऑपरेटिव बैंक तो आपने देखे होंगे, बहुत सारे हैं, पूना डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एंड ये वो बहुत सारे, हर डिस्ट्रिक्ट का कोऑपरेटिव बैंक होता है। तो ये 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है माय डियर। सोल ट्रेडिंग कंसर्न वेयर बिजनेस इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ सिंगल पर्सन। ओनर मैनेजर वही होता है, सारा प्रॉफिट उसका, सारा लॉस उसका, लेकिन लायबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड एंड इन दैट केस ऑब्वियसली इन केस ऑफ लॉस his personal property can be attached to the same. उसके साथ partnership firm where business is started by 2 or more than 2 people for earning profits
and absolutely the profit and losses will be shared in the ratio of capital contribution. Now यहाँ पे लायबिलिटी इनकी क्या है ये आप मुझे कल बोलेंगे, आप कहीं पे भी पढ़ के बोल सकते हैं, गूगल बाबा से पूछ के बोल सकते हैं. जॉइंट स्टॉक कंपनी वेयर अ कंपनी इज स्टार्टेड बाय द प्रमोटर ओनर and then it is jointly contributed by so many people who are interested in contributing in that particular company. Reliance, Tata, Infosys, HUL, TCS, all these are nothing but the examples of joint stock company. Here stock is called as capital, and as jointly capital is contributed, hence it is called as a joint stock company. Next to that is an HUF, my dear, that is Hindu Undivided Family, a family business run by Karta or manager, that is run by, you can say that the एंसेस्टर्स, जहां से बिजनेस आया, आपके पूर्वजों से आया और आगे के आपके वंशज ये बिजनेस चलाते रहेंगे. चितई बंधु, हल्दीराम आर द परफेक्ट एग्जांपल्स ऑफ HUF. नेक्स्ट दैट इज कोऑपरेटिव फॉर्म्स, माय डियर. दीज आर नथिंग बट स्टार्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन पीपल, और यू कैन से दैट द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी that they can get the quality goods and services at reasonable prices, and for that this particular cooperative firms are started. ग्राहकपेट पुणे में जो है टिळक रोड पे, ये उसका एग्जांपल है. So these are different forms of business organization, my dear. I hope you are getting them. You are supposed to copy them, my dear. आपको इसको कॉपी करना है, सिर्फ नाम है, बाकी कुछ नहीं है. ऊपर देना है हेडिंग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. गुड, बाकी लोगों ने तो कॉपी भी कर लिया, देखिए, तो फटाफट कॉपी कर लीजिए, बस नाम कॉपी करने हैं. और कल मुझे बताना है दैट इन अ पार्टनरशिप फॉर्म द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड और अनलिमिटेड. ये आप गूगल से पूछ के बता सकते हैं, बुक्स में पढ़ के बता सकते हैं. चलिए फटाफट ये लिख लीजिए एंड देन विल कंटिन्यू. पांचों फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लिख दीजिए बेटा, दैट इज वेरी मच नेसेसरी, है ना, दैट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है बेटा? Online students, if you are having doubt, you can just chat in the chat box there. Type in the chat box and we'll surely reply to that. हम उसको पक्का रिप्लाई करेंगे. या फिर आपके पास मेरा नंबर भी होगा तो आप मुझे SMS कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो कॉल भी कर सकते हैं कभी कभार, है ना, इन ऑफिशियल टाइमिंग्स ओनली. तो डन, चलिए आगे चलते हैं. So these are the 5 forms of business organization: sole trading concern, partnership firm, joint stock company, Hindu undivided family and cooperative firms. आगे चलते हैं, इसको क्लियर कर देता हूं मैं ताकि हम ये सम सॉल्व कर पाए अच्छे से, है ना. चलिए, व्हाट इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन? तो पहले दो एस्पेक्ट क्या थे बेटा? कैश कम्स इन द बिजनेस, owner is the giver or proprietor is the giver. Accounts impacted क्या है? Yes, आप ही पूरा बोलेंगे इसने. यहां फर्स्ट अकाउंट इंपैक्टेड, यस दैट इज करेक्ट. कैश अकाउंट, पहला कैश अकाउंट है और दूसरा, यस अमर, दैट इज कैपिटल अकाउंट. करेक्ट, पहला कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट. ट्रेडिशनल से अगर जाए तो फिर कैश अकाउंट इज विच अकाउंट? रियल, नॉमिनल और पर्सनल. यस राजवीर, ट्रेडिशनल से अगर जाए तो कैश आपका क्या है? बिजनेस का असेट है, एंड असेट इज ऑलवेज अ रियल अकाउंट. तो ट्रेडिशनल में कैश आपका रियल अकाउंट है और कैपिटल ऑलवेज इज अ पर्सनल अकाउंट ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. क्या है कंसेप्ट? हमने बहुत बार एक्सप्लेन किया है. तो कैश इज रियल अकाउंट, सॉरी, एंड कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट. रूल फॉर रियल अकाउंट, यस अंश, करेक्ट. डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट goes out of the business. But as of now business में कैश आ रही है या बाहर जा रही है? बिजनेस के अंश, यस, बिजनेस में कैश आ रही है, जा नहीं रही है. बिजनेस में कैश आ रही है, so कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, so कैश अकाउंट इज डेबिटेड. कैश को हम क्या करेंगे बेटा? डेबिट करेंगे. और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? यस वैष्णवी, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है बेटा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अब एक अकाउंट तो डेबिट हो चुका है, दो ही अकाउंट है, तो कैश डेबिट हुआ तो नेचुरली क्रेडिट द गिवर. सो डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस एंड क्रेडिट द गिवर. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. दिस विल बी द जर्नल एंट्री एज फार एज दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज कंसर्न. अकाउंट टू बी डेबिटेड इज कैश अकाउंट, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज कैपिटल अकाउंट. जो अकाउंट आपको डेबिट करना है वो कैश अकाउंट है, जो अकाउंट आपको क्रेडिट करना है वो क्या है? कैपिटल अकाउंट है. सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट ट्रांजैक्शन. इसी को मॉडर्न से अगर चले जाएंगे तो क्या होगा? एस्पेक्ट तो वही है,
कैश कम्स इन द बिजनेस एंड प्रोपराइटर इज द गिवर। करेक्ट है? बताइए पुष्कर, क्या रहेगा बेटा? कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे? कैटेगराइजेशन। यस, कैश इज योर असेट एंड कैपिटल इज योर लायबिलिटी। कैश आपकी असेट है और कैपिटल आपकी लायबिलिटी है। और रूल बताइए पुष्कर। हाँ, इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। बराबर मिक्सचर किया। असेट बढ़ रहा है, कैश बढ़ रही है, आपके बिजनेस में आ रही है, कैपिटल भी आपके बिजनेस में आ रहा है, बढ़ रहा है। सो कैश इज इंक्रीजिंग एंड असेट इज इंक्रीजिंग, इट शुड बी डेबिटेड. Capital is increasing, liability is increasing, hence it should be credited. So account to be debited is cash account, account to be credited is capital account. मॉडर्न से जाएंगे तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कल के लेक्चर में ही देखा था, एक पूरा सम हमने सॉल्व किया था, अभी यहीं पे देख सकते हैं आप। Where it is going to give the same impact on the debit and credit. The rules though they are different, रूल्स अलग अलग है लेकिन इंपैक्ट सेम रहेगा। दूसरा ट्रांजैक्शन लेते हैं और चलिए आराधना आप बोलिए। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया बेटा ₹2000। कैश आपने डिपॉजिट किया कहां पे? बैंक ऑफ इंडिया में। तो कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया, हाउ मच? दैट इज ₹2000। 2000 रुपए कैश आपने डिपॉजिट किया। सो व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स? दैट बैंक इज द रिसीवर। वेरी गुड, रिसीवर। कैश किसको मिला बेटा? बैंक ऑफ इंडिया को। तो बैंक इज द रिसीवर एंड cash goes out of the business. Bank is the receiver and cash goes out of the business. So account impacted क्या क्या आएंगे बताइए? account impacted क्या क्या आएंगे बेटा? पहला आएगा कैश अकाउंट, that is absolutely right. पहला क्या आएगा? कैश अकाउंट और दूसरा क्या आएगा? बैंक अकाउंट। तो एक आएगा कैश अकाउंट और दूसरा आएगा बैंक अकाउंट। अगर हम अकाउंट की बात करते हैं तो पहला कैश अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। और अगर मैं यहां पे इसको टाइप ऑफ अकाउंट बताऊं तो टाइप ऑफ अकाउंट में कैश क्या है? कैश इज अ रियल अकाउंट एज एन एसेट एंड बैंक इज यूजुअली अ पर्सनल अकाउंट, बट डिपेंड्स कि आपका कैश है या आपने लोन लिया है। तो अभी तो लोन का कोई बात नहीं है, तो ये पर्सनल अकाउंट है। और आपका एट द सेम टाइम यू कैन से दैट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। एम आई राइट? क्योंकि कैश आपने डिपॉजिट की कहां पे? बैंक ऑफ इंडिया में। तो डेबिट किसको करेंगे बेटा? डेबिट द रिसीवर, मतलब बैंक ऑफ इंडिया को हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसको करेंगे बेटा जी? क्रेडिट हम करेंगे कैश अकाउंट को। सो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो बैंक ऑफ इंडिया इज डेबिटेड एंड कैश इज क्रेडिटेड बिकॉज कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ। ये ट्रेडिशनल से हुआ। मॉडर्न से क्या फर्क पड़ेगा? जहां पे हमने रियल अकाउंट लिखा उसको हम क्या बुलाएंगे बेटा? रियल अकाउंट आर नथिंग बट योर असेट्स। तो चलिए यहीं पे लिख लेता हूं, रियल के बजाय हम उसको बुलाएंगे असेट अकाउंट, है ना। और बैंक अकाउंट को हम बुलाएंगे, बैंक अकाउंट आपका क्या है? बैंक भी एज ऑफ नाउ आपका असेट है। बैंक क्यों असेट है? आपका पैसा है ना, यू आर डिपॉजिटिंग इट। तो इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड। दोनों असेट है अभी, तो ये फर्क है यहां पे। कौन सा असेट बढ़ रहा है? बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, यू आर डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक। एंड कौन सा असेट घट रहा है? बिजनेस से कैश गया, बैंक अकाउंट में आपने डिपॉजिट किया, मतलब बिजनेस का कैश तो कम हुआ ना, हाँ या ना? समझ में आ रहा ना बेटा? तो बिजनेस का कैश कम हुआ, हेंस कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। और बैंक बैलेंस आपका बढ़ा तो बैंक अकाउंट इज डेबिटेड। इंक्रीज इन वन असेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन अनदर असेट इज क्रेडिटेड। रूल इज बेसिकली इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड। तो हम बैंक को करेंगे डेबिट और कैश को करेंगे क्रेडिट। बैंक स्पेसिफिकली प्लीज रीड इट एज बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, क्योंकि कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है, यहां पे स्पेसिफाई किया है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए बेटा, ट्रेडिशनल जाइए या मॉडर्न जाइए, ये आउटपुट इज वन एंड द सेम। आउटपुट में ऐसा कुछ डिफरेंस होने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। थोड़ा फर्क पड़ता है एब्सोल्युटली, उसमें कोई दो राय नहीं है, थोड़ा सा फर्क तो है व्हेन वी आर गोइंग टू सी द मेथोडोलॉजी, अदरवाइज आंसर इज वन एंड द सेम। तो इसलिए कुछ फंबल होने की जरूरत नहीं है, शांति से करना है। उधर रियल नॉमिनल पर्सनल और इधर असेट्स लायबिलिटीज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इनकम एंड गेन, इस तरह से करेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो आपको भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, आगे
विड्रू कैश ₹1000 फॉर पर्सनल यूज। ना ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कैश आपने विड्रॉ की लेकिन उसका यूज कैसा है बेटा, पर्सनल यूज है। पर्सनल यूज है मतलब ड्राइंग इज द अमाउंट विच इज विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय द ओनर। नाउ ड्राइंग कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। ये ड्राइंग कैसे कर सकते हो बेटा, या तो आप कैश के फॉर्म में कीजिए या तो आप गुड्स के फॉर्म में कीजिए। व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स? एस्पेक्ट नंबर 1, drawing is the receiver. Why? Because drawing is a personal account, my dear, because of business entity concept. So drawing is a receiver. And क्या विड्रॉ किया आपने, कैश। तो कैश goes out of the business, क्योंकि आपके बिजनेस के बाहर चला गया ना कैश। So drawing is a receiver and cash goes out of the business. So accounts impacted. Number 1 is a drawing account and number 2 is a cash account. तो ड्राइंग कैसा अकाउंट है बेटा, अभी तो बोला मैंने, ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ड्राइंग एंड कैपिटल इज ऑलवेज अ पर्सनल अकाउंट बिकॉज बोथ आर डन बाय द ओनर। कैपिटल कंट्रीब्यूट ओनर करता है, विड्रॉ भी ओनर ही करता है पर्सनल यूज के लिए, और कौन करने वाला है। और कैश अकाउंट इज ऑलवेज यू असेट, इट इज अ रियल अकाउंट एंड रूल सेज दैट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब मैं मिक्सचर कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, दूसरा रियल अकाउंट है, तो कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना। या तो बनेगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस एंड क्रेडिट द गिवर, है ना। यही कॉम्बिनेशन बनेगा, आइदर डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन अभी के लिए आप तो विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग आपकी रिसीव कर रही है। सो ड्राइंग अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट एंड डेबिट द रिसीवर। सो ड्राइंग को हम डेबिट करेंगे बेटा, और आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कैश बिजनेस के बाहर जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, हेंस क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ड्राइंग को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। ट्रेडिशनली मॉडर्न में चलते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ड्राइंग को तो ऑब्वियसली एस्पेक्ट्स विल बी सेम, अकाउंट्स विल बी सेम। अब ड्राइंग को हम क्या करेंगे, अब यहां पे बड़ा आसान है, ड्राइंग को हम बुलाएंगे इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आइदर लायबिलिटी और कैपिटल। क्योंकि ड्राइंग का इंपैक्ट क्या है, ड्राइंग ऑलवेज रिड्यूसेस कैपिटल, ये इंपैक्ट है। और कैश अकाउंट तो हम सबको पता है इट इज एन असेट। तो ड्राइंग को हम क्या मानेंगे, ड्राइंग इज नथिंग बट लाइक कैपिटल। और कैपिटल का रूल क्या है, कैपिटल इज लायबिलिटी एंड रूल फॉर कैपिटल इज इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड। ध्यान से सुनिए बेटा, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड। तो आप ड्राइंग करके कैपिटल बढ़ा रहे या कैपिटल घटा रहे, बढ़ा रहे। हाँ, हम ड्राइंग करके कैपिटल घटा रहे। मैंने अभी बोला ड्राइंग ऑलवेज रिड्यूसेस कैपिटल। सो बाय मॉडर्न मेथड अगेन डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। सो व्हाट इज डेबिटेड इज ड्राइंग अकाउंट एंड decrease in asset is credited, that is which account is credited is cash account। इसलिए ड्राइंग को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। मेथड आप कोई भी अप्लाई कीजिए, आंसर विल बी वन एंड द सेम। आप ट्रेडिशनल जाइए या मॉडर्न जाइए। सो वी आर डन विथ 3 ट्रांजैक्शंस। उसमें तीसरा इंपॉर्टेंट था, थोड़ा नया था, नया है ना, नया है वह, ये पहली बार देख रहे हैं ना ड्राइंग आप, तो इसलिए any amount or goods which are withdrawn for personal use is called as drawing, and obviously drawing is something which is relevant with only sole trading concern and partnership firm। एक कंपनी में ड्राइंग होता ही नहीं बेटा। अब आप बोलेंगे कि मुकेश अंबानी पैसे विड्रॉ करेंगे क्या, नहीं नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। करेंगे तो भी वो अपने अपने हिस्से करेंगे, तो कंपनी से ऐसा विड्रॉ करने का कोई लेना देना है नहीं। कंपनी में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है दैट ओनर कैन विड्रॉ, वो अपने शेयर बेचे, अपना अपना पैसा ले ले, एज सिंपल एज दैट। ड्राइंग इज द कंसेप्ट ऑफ ओनली सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड पार्टनरशिप फॉर्म। बाकी कहीं पे ड्राइंग नहीं हो सकती, बाकी जगह पे आप आपका कैपिटल रिलीज करके ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीलेश ₹2000। आपने गुड्स खरीदे और वो भी क्लियर कट पार्टी का नाम दिया है और बोला है कि क्रेडिट में खरीदे। आपने गुड्स खरीदे बेटा, डोंट परचेस एनी एसेट। व्हाट आर द 2 एस्पेक्ट्स? यस, बताइए। हाँ, आप बताइए बेटा। योर इज न्यू एडमिशन ना, व्हाट्स योर नेम? आदित्य। ओके आदित्य, बोलिए आप क्या है? गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। यस, परचेस इज एन एक्सपेंस। वेरी गुड। दिन आके भी ऐसा अगर है तो क्या बात है,
ऑनलाइन लेक्चर्स देखे, वेरी गुड, वंडरफुल. सो परचेस इज एन एक्सपेंस एंड कैश गोज आउट. नो, ट्रांजैक्शन इज ऑन क्रेडिट बेसिस माय डियर. आदित्य, ट्रांजैक्शन कैसा है? क्रेडिट पे है. यस, यू कैन सी दैट द पार्टी इज द गिवर. और किससे खरीदे आपने? परचेस इज एन एक्सपेंस एंड नीलेश इज द गिवर. Purchase is an expense and Nilesh is the giver. So what are the two accounts? One is purchases account, another is Nilesh account. Purchase being expense is a nominal account and Nilesh being is a party and a person, it is a personal account. Being nominal account, rule says that debit all expenses and losses of the business and क्रेडिट द गिवर. इसका मतलब है परचेसेस को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि आपके एक्सपेंडिचर है. और किससे खरीद रहे? क्रेडिट पे खरीद रहे आप आपके एक सप्लायर से, जिसको पैसे आप फ्यूचर में तो आप पे नहीं करते. सो परचेस इज एन एक्सपेंडिचर, हेंस परचेस अकाउंट इज डेबिटेड एंड नीलेश इज क्रेडिटेड. इसलिए परचेस को डेबिट करना है और नीलेश को क्रेडिट करना है. ये हुआ ट्रेडिशनल का फंडा. मॉडर्न में कैसे करेंगे? मॉडर्न में भी वही है. परचेस को हम क्या बोलेंगे? परचेस इज योर एक्सपेंस. तो यहां पे लिखता हूं, पहला अकाउंट है परचेस अकाउंट और दूसरा अकाउंट आपका नीलेश अकाउंट है. नीलेश अकाउंट है तो परचेस आपका हुआ एक्सपेंस. मॉडर्न की बात कर रहे हो बेटा. और नीलेश कौन है आपका? आप नीलेश ये नहीं बोल सकते कि नीलेश पर्सनल अकाउंट है. मॉडर्न मेथड में, मॉडर्न मेथड क्या बोलती है? आइडेंटिफाई इट एज एन असेट फॉर अ बिजनेस, लायबिलिटी फॉर अ बिजनेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस और इनकम एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस. आपने गुड्स खरीदे, कैसे खरीदे? क्रेडिट पे. किससे खरीदे? नीलेश से. पैसे बाद में देंगे. बाद में देंगे मतलब वो आपका सप्लायर है जिसको आप फ्यूचर में पे करेंगे. एंड द पीपल टू हुम बिजनेस ओज मनी आर कॉल्ड एज क्रेडिटर्स. वेरी गुड. एंड क्रेडिटर रिप्रेजेंट्स लायबिलिटी. ये लायबिलिटी अकाउंट हुआ मॉडर्न मेथड से. तो एक एक्सपेंस है परचेसेस और दूसरी लायबिलिटी है, दोनों बढ़ रहे. आपने गुड्स खरीदे तो गुड्स बढ़े, रॉ मटेरियल बढ़ा बिजनेस में. और सप्लायर से क्रेडिट पे खरीदे, अभी तो बिजनेस चालू किया, इसके पहले सप्लायर का नामो निशान नहीं था तो अब उसको पैसा देना बाकी है. सो गुड्स आर परचेस्ड ऑन क्रेडिट एंड मनी इज एट टू बी गिवन टू द पर्सन एंड ऑब्वियसली इट रिप्रेजेंट्स अ क्रेडिटर. सो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू नीलेश अकाउंट. क्यों? Because increase in expenses is debited and credit Nilesh because increase in liability is credited. इसलिए हम purchases को डेबिट करेंगे बेटा जी. Increase in purchases is debited and increase in liability is credited. Being creditor, Nilesh is your liability and liability should be credited. तो इस तरह से ये बनेगा and that you can understand that how we are going to record all these transactions. समझ में आ रहा है बेटा कि ये सारा कैसे हो रहा है? चलो, ये चला गया. आपको दिक्कत हो रही थी देखने में तो मैंने थोड़ा सा उसको क्लिक करके निकाल दिया. अब मेरे पे शायद आप वो देख सकते हैं, बट दैट इज ओके, नॉट एन इश्यू. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज व्हाट एग्जैक्टली माय डियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन यू कैन सी दैट इज कैश परचेसेस ₹3000. यस, बताइए, आपको ही बताना है बेटा. हाँ शिवानी, कैश परचेसेस. कैश परचेसेस मतलब गुड्स परचेस्ड फॉर कैश. Yes, purchase is an expense and cash goes out. Very good. Purchase is an expense, cash goes out. So impacted account is purchase account and cash account. Purchase is your nominal account and cash is your real account. Purchase आपका nominal account है और cash आपका real account है. Nominal account says that debit all expenses and losses of the business and cash account says that being real account credit what goes out. इसलिए purchases को debit और cash को क्रेडिट करेंगे. यही मॉडर्न में जाएंगे तो परचेसेस ही लिखेंगे. अकाउंट तो एस्पेक्ट भी वही रहेंगे. परचेस इज एन एक्सपेंस एंड कैश गोज आउट. सो परचेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट. परचेस इज एन एक्सपेंस एंड कैश इज एन असेट. सो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज इन असेट. इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड सॉरी डिक्रीज इन असेट. क्योंकि कैश जा रहा है, क्योंकि आपने कैश में खरीदा है, कैश बिजनेस के बाहर जा रहा है, इसलिए इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड. तो परचेसेस को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है. वेरी सिंपल. तो परचेसेस को आप डेबिट करेंगे बेटा जी और कैश को आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. सो परचेस अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैश अकाउंट इज credited. So this is what transaction number 5.
6 पेड वेजेस। चलिए फटाफट क्रॉस चेक कर लेते हैं एंड देन वी कैन सी द अकाउंटिंग इक्वेशन टुडे। मैंने आपको पहले ही बोला है, एनीथिंग पेड और रिसीव्ड इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कैश। आप कुछ भी बोलो पेड और रिसीव्ड, तो उसको हम कौन से फॉर्म में बोलते हैं? कैश के फॉर्म में बोलते हैं, है ना। या तो बैंक को मेंशन करना पड़ेगा, या तो फिर नहीं मेंशन किया तो कैश ही लेंगे। क्या पे किया? वेजेस पे किए। वेजेस इज व्हाट फॉर द बिजनेस? इनकम और एक्सपेंस? Yes, that is correct. Wages are paid to the laborers for their effort which has been put into the production or manufacturing activity. So wages is an expense and cash goes out. Wages आपके expense है और cash बाहर जा रही है business के. So wages is first account and cash is second account. Wages is nominal account and cash is a real account. So debit all expenses and losses of the business and credit what goes to the business. तो wages को हम debit करेंगे और cash को क्रेडिट करेंगे। यही मॉडर्न मेथड में भी होगा। मॉडर्न मेथड में वेजेस अगेन एन एक्सपेंस एंड कैश इज अ असेट। सो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड। सो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस मतलब वेजेस पे कर रहे, वेजेस बढ़ रहे, तो वेजेस अकाउंट को डेबिट कीजिए। और कैश आप पे कर रहे वेजेस के लिए, तो बिजनेस से कैश बाहर जा रही है, कैश कम हो रही है बिजनेस की, बिकॉज यू आर पेइंग इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। So increase in expenses is debited, that is wages, and decrease in asset cash, that is credited. तो wages account debit to cash account. उसके बाद purchase a chair और purchased a chair for office use rupees 3,200. अब ये रॉ मटेरियल खरीदा क्या? गुड्स खरीदे क्या? नहीं, आपने असेट खरीदा है। क्या? शेयर खरीदे आपने, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। शेयर फर्नीचर एंड फिक्सचर ही है ना। तो या तो इसको फर्नीचर बोलिए या तो डायरेक्ट शेयर बोल दीजिए। सो चेयर इज व्हाट फॉर बिजनेस माय डियर? यस, वेरी गुड। चेयर कम्स इन द बिजनेस, क्योंकि चेयर आपका क्या है? असेट है। चेयर कम्स इन द बिजनेस। और कैसे? कैश गोज आउट। क्यों? बिकॉज द ट्रांजैक्शन इज साइलेंट अबाउट कैश एंड क्रेडिट एंड नेम ऑफ द पार्टी इज। ट्रांजैक्शन साइलेंट है और ये बताया नहीं कि पार्टी कौन है, किससे खरीदा है। मतलब उसका रूल क्या बोलता है? When transaction is silent about cash and credit and name of the party is not mentioned, online students, then the transaction is assumed on credit basis, my dear. And opposite rule, when a transaction is silent about cash and credit and even name of the party is not mentioned, then it is assumed on cash basis. हमने ये सारे रूल पहले के लेक्चर में देखे। हमारा लगभग 14th लेक्चर चालू है, ये 13 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, तो सारे आपको देखने हैं वन बाय वन, जो नए बच्चों ने ज्वाइन किया है, so that you can understand it very properly. So chair in the business and cash goes out. दोनों असेट है, चेयर भी असेट है, कैश भी असेट है। ट्रेडिशनल में बोलेंगे ये दोनों रियल अकाउंट है, मॉडर्न में बोलेंगे ये दोनों असेट है। तो ट्रेडिशनल बोलेगा डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस, हेंस चेयर अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। मॉडर्न में वन असेट इज इंक्रीजिंग एंड अनदर असेट इज डिक्रीजिंग। कौन सा असेट बढ़ रहा है? आपका चेयर बढ़ रही है। और कौन सा असेट घट रहा है? कैश घट रहा है। Hence, chair account is debited and cash account is credited as far as this particular transaction is concerned. समझ में आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत है? वेरी गुड, आगे चलते हैं। Sold goods to मोहन वर्थ रुपीज 1200। गुड्स बेचे आपने, कितने के बेचे बेटा? 1200 रुपए के। और अभी कोई असेट बेचा या गुड्स बेचे? So you sold asset. So whenever business sells raw material or goods, then impacted is sales account, and whenever business purchases or sells assets, then impacted is asset account. तो यहां पे तो गुड्स बेचे आपने, so impacted account क्या रहेगा? Obviously one aspect is cash comes in the business. आप बोलेंगे क्यों सर, कैश आ रहा है क्या? तो देखिए यहां पे दिया है sold goods, सॉरी यहां पे दिया है sold goods to मोहन वर्थ रुपीज 1200। यस, कैश में या क्रेडिट में? आप बताइए बेटा। यस अंश, यस क्रेडिट में ट्रांजैक्शन। क्यों? बिकॉज ट्रांजैक्शन इज साइलेंट अबाउट कैश एंड क्रेडिट बट नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, दैट इज मोहन। किसको बेचा? मोहन को बेचा। कैसे बेचा? कैश में, क्रेडिट में नहीं बताया। देन इट इज अज्यूम्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। तो टू एस्पेक्ट्स माय डियर, ये करके बताता हूं क्योंकि लास्ट सम में सेल का कोई ट्रांजैक्शन मेरे ख्याल से नहीं आया था। तो यहां पे एस्पेक्ट नंबर 1, सेल इज एन इनकम, है ना। सेल इज एन इनकम एंड मोहन इज द रिसीवर। मोहन इज रिसीवर। किसको बेच के? अपने मोहन को बेचे।
सो अकाउंट्स कौन से आएंगे बेटा? दो अकाउंट्स, पहला सेल अकाउंट आएगा और दूसरा मोहन अकाउंट आएगा. सो फर्स्ट अकाउंट इज सेल्स अकाउंट. नीचे ऊपर कर सकते हैं आप, पहले मोहन लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. पहले सेल्स अकाउंट बाद में मोहन अकाउंट, या पहले मोहन अकाउंट बाद में सेल्स अकाउंट. ट्रेडिशनल में जाएंगे तो सेल्स इज योर नॉमिनल अकाउंट एंड मोहन इज योर पर्सनल अकाउंट. ट्रेडिशनल में जाएंगे तो. मॉडर्न में जाएंगे तो सेल्स इज योर इनकम, है ना, और पर्सनल अकाउंट मोहन. मोहन आपका कौन है? आप बेच रहे और वो भी क्रेडिट पे. वेरी गुड. आप क्रेडिट पे बेच रहे, पैसा नहीं आ रहा है. कब आएगा पता नहीं, फ्यूचर में आएगा, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद. यहां पे तो दिया नहीं. क्रेडिट सेल है. क्रेडिट सेल गिव राइज टू डेटर. द कस्टमर्स टू हुम बिजनेस हैज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस आर कॉल्ड एज योर डेटर्स एंड डेटर रिप्रेजेंट अ असेट. इसको असेट बुलाते हैं. तो डेटर आपका क्या है बेटा जी? असेट है. डेटर आपका असेट है. और तो ये ट्रेडिशनली और मॉडर्न से दोनों से कर दिया. नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस. सेल आपका इनकम है, एक्सपेंडिचर है? सेल तो आपका इनकम है. तो सेल को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस. एंड योर पर्सनल अकाउंट सेज दैट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. कौन है रिसीवर? मोहन इज द रिसीवर. सो अकाउंट टू बी डेबिटेड माय डियर इज मोहन अकाउंट एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज सेल्स अकाउंट. मोहन को डेबिट करेंगे और सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे. दैट इज व्हाट इट इज गिवन हियर. और आगे अगर हम देखेंगे तो बड़ा क्लियर पिक्चर है. क्या? एक है आपका इनकम, दूसरा है असेट. आपका इनकम भी बढ़ रहा है और असेट भी बढ़ रहा है. क्यों? आपने सेल किया मतलब आपका सेल का फिगर बढ़ रहा है, और क्रेडिट पे सेल किया इसलिए आपका डेटर का जो फिगर है वो बढ़ेगा. क्यों? पैसे तो आए नहीं, फ्यूचर में आएंगे, तो आना बाकी है, इसलिए डेटर बता दिया. इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन इनकम इज क्रेडिटेड. इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, दैट इज डेटर, और मोहन इज डेबिटेड एंड सॉरी इंक्रीज इन असेट इन टर्म्स ऑफ डेटर. ऑब्वियसली मोहन डेटर है आपका, असेट है, तो इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड. तो मोहन का हम क्या करेंगे बेटा? डेबिट करेंगे. और इंक्रीज इन इनकम इज क्रेडिटेड. तो सेल आपका इनकम है तो सेल क्रेडिट करेंगे मेथड से. इस तरह से आप मोहन को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे. तो मॉडर्न से भी जाइए तो भी आउटपुट सेम है, ट्रेडिशनल से भी जाइए तो भी आउटपुट सेम है. सबका सही आया बेटा? किस किस का गलत आया? I'll check your notebooks as well. Just give me a minute. सारा खत्म कर लेते हैं and then I can check your notebooks. काटा हुआ होगा मतलब है आपने गड़बड़ किया है, अभी देख के किया है ना. तो जो कुछ है वो क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा. आगे, विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज. कैश अपने ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किया है. कल सेम ट्रांजैक्शन था, अगर आपको याद होगा तो. कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज. तो एस्पेक्ट नंबर 1, cash comes in business and bank is the giver. So account is cash account and bank account. Cash is real account being asset and bank is personal account being a obviously account. And at the same time either it may be your asset or maybe a liability depending on आपका कैश है या आपने लोन लिया है. तो लोन का कोई किस्सा नहीं है, आपने पैसा आपका विड्रॉ किया है. So debit what comes in the business and credit the giver. कैश को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे. मॉडर्न में जाएंगे तो कैश आपका असेट है और बैंक भी आपका असेट है. क्यों? दोनों बैलेंसेस आपके हैं. आपका बैंक अकाउंट है, आपकी खुद की कैश है बिजनेस की. इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड. अब कैश बढ़ी और बैंक बैलेंस कम हुआ. एग्जैक्टली अपोजिट. कैश जब डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो बैंक बैलेंस बढ़ता है और कैश घटती है बिजनेस की. अब आप विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से ऑफिस यूज के लिए, अभी तक क्या किया उसका पता नहीं हमें. फर्स्ट विड्रॉ करके रखा है ऑफिस यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं है. तो इसलिए कैश बैलेंस बढ़ा बिजनेस का और बैंक बैलेंस कम हुआ. इंक्रीज इन डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड. कैश को डेबिट करो और बैंक को क्रेडिट करो, ट्रेडिशनल हो या मॉडर्न हो. आई होप यू आर गेटिंग दिस, नो इश्यूज देयर. ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, कोई डाउट है तो जरूर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं बेटा. लास्ट 3 ट्रांजैक्शन. सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ₹9,000. आपने पुराना फर्नीचर बेचा और वो भी कितने में बेचा बेटा जी? 9,000 में. पुराना फर्नीचर बेचा है, गुड्स नहीं बेचे आपने. So by rule, whenever you are purchasing and selling an asset, impacted account is asset account. So furniture goes out of the business. कैसे बेचा? Credit cash कुछ नहीं बोला है. When a transaction is silent about cash and credit and name of the party is not mentioned, then transaction is assumed on cash basis. So furniture and cash are the two accounts. पहला furniture account है और दूसरा
कैश अकाउंट है, याद रखिए बेटा, बोथ आर योर असेट. सो डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस. क्या आ रहा है बिजनेस में? कैश. क्या जा रहा है? फर्नीचर. तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. So this is what the debit and credit for sold old furniture. मॉडर्न में जाएंगे तो कैश भी असेट और फर्नीचर भी असेट. इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड. कौन सा असेट बढ़ रहा है? कैश बढ़ रही है, क्योंकि कैश आया फर्नीचर बेचने के बाद. और क्या घटा? बिजनेस से फर्नीचर घटा. सो इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, कैश इज डेबिटेड, इंक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड, दैट इज फर्नीचर इज क्रेडिटेड. इसलिए कैश को डेबिट करेंगे और फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे. याद रखना बेटा. लास्ट टू ट्रांजैक्शंस. रिसीव डिविडेंड ऑफ ₹1000. कल मेरे ख्याल से रेंट मिला था आपको आखिरी में, आज डिविडेंड मिल रहा है. डिविडेंड इज, मैंने आपको बहुत बार बोला है, डिविडेंड इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेड ऑन द शेयर्स विच वी हैव परचेस्ड. तो क्या आएगा? एस्पेक्ट. इंटरेस्ट इज एन इनकम? नहीं, इंटरेस्ट की बजाय डिविडेंड इज एन इनकम. आपका डिविडेंड क्या है बेटा जी? इनकम है. एंड कैश कम्स इन द बिजनेस. क्यों? क्योंकि कुछ भी पे किया, रिसीव किया, तो हम मानते हैं कि कैश ही पे किया, कैश ही रिसीव किया. अकाउंट, पहला डिविडेंड अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट. टाइप, डिविडेंड आपका इनकम है, इनकम इज अ नॉमिनल अकाउंट, एंड कैश आपका असेट है, इट इज अ रियल अकाउंट. Rule for nominal account says debit all expenses and losses of the business, credit all incomes and gains of the business. अब डिविडेंड पे तो नहीं किया, रिसीव किया आपने. याद रखिए बेटा, डिविडेंड कुछ नहीं है. जैसे आपको इंटरेस्ट मिलता है एफडी पे, जैसे आपको डिविडेंड मिलता है शेयर खरीदने पे. अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, डीमैट अप होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, शेयर खरीदेंगे. क्यों खरीदेंगे? एवरीथिंग, एवरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इज डन फॉर गेटिंग प्रॉफिट. तो आपको इस पे प्रॉफिट मिलने वाला है, इसलिए आपने शेयर खरीदे. तो डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, माय डियर. क्यों? बिकॉज डेबिट क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस एंड डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस. डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस. क्या आ रहा है बिजनेस में? कैश अकाउंट. सॉरी अगर मैंने कुछ उल्टा बोला है तो. और डिविडेंड को हम क्रेडिट करेंगे. क्यों? क्योंकि डिविडेंड तो आ रहा है, पे नहीं कर रहे अपन, एंड आ रहा है मतलब इनकम है. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस एंड डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस. कैश तो आ रहा है अभी डिविडेंड के फॉर्म में. सो कैश कम्स इन द बिजनेस, हेंस कैश इज डेबिटेड एंड डिविडेंड इज डेबिटेड. अगर मॉडर्न में चले जाए तो डिविडेंड को हम बुलाएंगे इनकम और कैश को बुलाएंगे असेट. सो इंक्रीज इन इनकम इज क्रेडिटेड एंड इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड. तो कैश बढ़ रहा है, बीइंग असेट इट शुड बी डेबिटेड. इनकम भी बढ़ रहा है, सो बीइंग इनकम इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड को हम क्रेडिट करेंगे. तो account to be debited is cash account, account to be credited is dividend account, my dear. तो cash to dividend आएगा. हाँ करेक्ट है. उल्टा होगा अगर आपने डिविडेंड पे किया तो. कैश टू डिविडेंड, ये कैश रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड की एंट्री है. डिविडेंड टू कैश, डिविडेंड पेड की एंट्री है. डिविडेंड अगर पे करेंगे तो कैश तो बिजनेस से जा रहा है ना, और आप पे कर रहे हैं एज एन एक्सपेंस डिविडेंड ऑन द शेयर्स विच द ओनर्स और विच डिफरेंट पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड, है ना. तो डिविडेंड टू कैश आएगा अगर डिविडेंड पेड होगा. उसी तरह से इज कैश टू रेंट और रेंट पेड इज रेंट टू कैश. आप रिसीव कर रहे हो इनकम बोल के, आपने भाड़े पे कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है, तो कैश तो आपको मिल रहा है ना. तो डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड रेंट अकाउंट इज क्रेडिटेड. उस तरह से हमें लेना पड़ेगा. ठीक है, आगे चलते, आगे देखते हैं क्या है. पेड फॉर प्रिंटिंग बिल बुक. प्रिंटिंग बिल बुक क्यों चाहिए आपको? प्रिंटिंग बिल बुक घर के लिए चाहिए, ऑफिस के लिए? ये ऑफिस एक्सपेंसेस मान लीजिए. प्रिंटिंग आप कर रहे हैं बिल बुक का, तो दिस इज कंसिडर्ड एज ऑफिस एक्सपेंसेस. सो व्हाट? प्रिंटिंग बिल बुक इज अ एक्सपेंस और इज एन एक्सपेंस, और ऑफिस एक्सपेंस इसको आप बुला सकते हैं सीधा सीधा. और क्या बोला है? पेड फॉर प्रिंटिंग बिल बुक. पेड मतलब कैश पेड, तो ऑब्वियसली कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस. अगेन ट्रांजैक्शन सीधा बोल रहा है पेड या रिसीव्ड, तो कैश ही लेना पड़ेगा. सो इंपैक्टेड अकाउंट फर्स्ट इज ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट. प्रिंटिंग बिल बुक को हम ऑफिस एक्सपेंसेस मानेंगे और दूसरा हम असेट लेंगे कैश. तो ये आपका हुआ नॉमिनल अकाउंट क्योंकि एक्सपेंस है, और कैश आपका असेट हुआ, तो आपका ये रियल अकाउंट हुआ. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट goes out. So what is debited? Debited is office expenses account, and what is credited is
कैश। तो आप डेबिट कीजिए ऑफिस एक्सपेंसेस को और क्रेडिट कीजिए कैश को। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी देयर माय डियर। समझ में आ रहा है? ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई डाउट है? ट्रेडिशनल में मॉडर्न में क्या होगा? ऑफिस एक्सपेंस कैटेगरी रहेगी एक्सपेंस की और कैश असेट। So increase in expense is debited, decrease in asset is credited. Hence office expenses is debited and cash is credited. बताइए बेटा, कहीं पे डाउट है तो आप जरूर बता सकते हैं। एक एंट्री अलग आई थी ड्राइंग वाली बस, बाकी तो लगभग कल की जैसी एंट्री थी। आप देखते हैं कि आपने क्या किया है, सही किया है, गलत किया है। कितने लोगों का सही आया है? कितने एंट्री गलत हुए? 2। ओके गुड। आपके 1, वेरी गुड। आपका आधा, वेरी गुड, वंडरफुल। आपके बेटा 4, वेरी गुड, नो इश्यूज। यही होता है बेटा, शुरुआत में तो ये सारी चीजें होनी है। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस परफेक्टली। मैंने ये आपको सॉल्व करके बताया, थोड़ा सा रफली बताया। कल का सम हमने पूरा किया था ट्रेडिशनल मॉडर्न से। आज का मैंने बस आपको बताया प्रॉपरली कि किस तरह से इसको अप्रोच करना है व्हेन वी आर गिविंग डेबिट एंड क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। यहां पे कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है तो जरूर पूछिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? एंड स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग हियर, आप भी बता सकते हैं कोई डाउट है तो। एक बार देख लीजिए बेटा, कोई दिक्कत है तो आप जरूर बताइए मुझे। इफ यू आर हैविंग एनी ऑफ द डाउट, मे बी स्मॉलेस्ट वन, यू शुड आस्क। इट इज ऑलवेज सेड दैट द क्यूरियस वन इज ऑलवेज गोइंग टू लर्न माय डियर। क्यूरियस वन लर्न करता है, क्यों? क्योंकि उसको क्यूरियोसिटी होती है, उसको पढ़ना होता है, उसको जानना होता है ना। अब न्यूटन को जानना ऊपर से, ऊपर के ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया? दैट इज द क्यूरियोसिटी दैट ही हैज फाउंड द लॉ ऑफ, यू कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का रूल उन्होंने निकाला। उसी तरह से थॉमस अल्वा एडिसन, न्यूटन, ये सारे लोग, उनको क्यूरियोसिटी बहुत थी। आप भी बन सकते हैं साइंटिस्ट। वैसे पैशनेट होके ही बनना पड़ता है। अनलेस एंड अनटिल आप किसी चीज के पीछे पैशनेटली जाओ तब तक तो मजा नहीं आता बेटा। हाँ, पैशन चलता है, शाहरुख खान पर अभी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। दैट इज ओके एट ऑल, बिकॉज ऑब्वियसली यू शुड हैव अ गुड पैशन इन ब्रैकेट, दैट इज ऑलवेज इसेंशियल। अच्छे पैशन होने चाहिए ताकि उसके आउटपुट भी अच्छे हो। सो डिटर्मिनेशन से करेंगे कोई चीज तो कोई दिक्कत है नहीं। सो दिस इज व्हाट द आउटपुट माय डियर। बताइए कहीं पे डाउट है तो। एनी डाउट यू कैन लेट मी नो। आई होप इट इज वेरी क्लियर। कोई डाउट है तो जरूर बताइए बेटा। लेट मी चेक योर नोटबुक, टिल दैट यू कैन जस्ट कॉपी। कुछ अगर आपको दिक्कत है तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे कुछ चीजें आपके लिए लिखी है। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है। आपके पास हमने ऑलरेडी नोट्स दिए जहां पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वैसे सामने भी देख सकते हैं। ओके, बताइए कोई डाउट है क्या? लेट मी चेक योर नोटबुक्स एज वेल। हाँ, ये सही किया बेटा, दैट इज राइट। कॉलम आपको अच्छे से बनाने, दैट इज वेरी मच इसेंशियल। कॉलम बनाएंगे तो ही कुछ होगा। प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। श्रेया, प्रेजेंटेशन अच्छे से करो बेटा। यस ध्वनि। रिया, आपका नोटबुक बताइए। गुड।
ये देखिए, दिस इज व्हाट वेल प्रेजेंटेशन, मतलब वेल प्लानिंग इज हाफ डन, उसी तरह से है। चलिए और अच्छे से प्रेजेंट कीजिए नेक्स्ट टाइम, नो इश्यूज, थोड़ा बहुत तो होता ही है। अगला चीज चालू कर लेते हैं, द न्यू वन। यस, let's start with a new thing, and that is called as an accounting equation, my dear. You must remember we have seen a dual aspect concept there. हमने एक ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट देखा था, उसके साथ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग भी देखी है हमने, है ना। ड्यूअल एस्पेक्ट और डबल एंट्री में क्या होता है? डबल एंट्री सेज दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज credit, for every debit there is an equal and corresponding credit, hence total of all debits is equal to total of all credits. The system of bookkeeping क्या बोलता है? For every debit there is an equal and corresponding credit, hence total of all debits is equal to total of all credits. और उसी से जन्म लेता है dual aspect concept which says that every transaction will at least have two impacts in such a way that always total assets is equal to total liability. ये इस तरह से रहेगा कि कभी भी आपके टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज आर ऑलवेज वन एंड द सेम। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे व्हाट इज गिवन देयर। अकाउंटिंग इक्वेशन signifies that assets of a business are always equal to the total of its liabilities and capital. आपके बिजनेस के जो भी assets है those are always equal to its liabilities, and accounting equation is expressed as total assets is equal to total liabilities. हम आखिरी से शुरुआत करते हैं, ये देखिए assets is equal to liabilities और total assets is equal to total liabilities। उसके पहले total assets is equal to capital plus outsiders liabilities। दो एस्पेक्ट आप देखेंगे, मैंने कुछ ट्रांजैक्शन लेके आपको समझाया था। लेट्स से दैट बिजनेस इज स्टार्टेड विथ कैश, तो मैंने टेबल बना दिया, इधर लायबिलिटी इधर असेट्स। तो बिजनेस चालू हुआ कैश के साथ, तो कैश आया, मतलब आपका असेट बढ़ा, तो असेट साइड में कैश बताइए, और कैपिटल बढ़ा तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल बताइए। कैश 20 लाख की, कैपिटल 20 लाख का, क्योंकि बिजनेस हुआ 20 लाख के साथ। अब आपने बोला आगे, along with that even business was having a bank balance of rupees 10 lakh and land and building where the business is started that belongs to the business valuing rupees 1 crore, यानी 1 करोड़ का आपका लैंड एंड बिल्डिंग, 10 लाख का बैंक बैलेंस, 20 लाख का कैश, ये सारा आप कैपिटल के फॉर्म में जमा करेंगे। लेकिन 3 असेट हुए, कौन से? कैश, लैंड एंड बिल्डिंग एंड बैंक बैलेंस। तो तीनों असेट साइड में आएंगे। कैश आपकी 20 लाख, बैंक बैलेंस 10 लाख और लैंड एंड बिल्डिंग 1 करोड़, और सबका टोटल लाएंगे आप कैपिटल में। तो दिस इज आल्सो द कंबाइंड एंट्री माय डियर, जहां पे 1 डेबिट और 3 क्रेडिट है, या 1 क्रेडिट और 3 डेबिट है। यहां पे सॉरी, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में 3 डेबिट है। क्यों? डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि कैश, बैंक बैलेंस और लैंड एंड बिल्डिंग तीनों कैपिटल के फॉर्म में आया, है ना। लेकिन तीनों आपके लिए क्या है? असेट है, बिजनेस के लिए रियल अकाउंट है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट 20 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 करोड़। टू कैपिटल अकाउंट तीनों का मिला के टोटल आएगा, दैट इज 1 करोड़ 30 lakhs। दैट विल बी द जर्नल एंट्री, और दैट विल बी, यू कैन से दैट अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। तो ये इक्वेशन है। टोटल असेट्स कितना हुआ? 1 करोड़ 30 लाख, कैश, बैंक बैलेंस और आपका लैंड एंड बिल्डिंग मिला के, और
कैपिटल का टोटल कितना हुआ, उतना ही हुआ, तो टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। अब अगर मैंने बोला आगे के ट्रांजैक्शन में, तो बिजनेस हैज टेकन अ बैंक लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक एट 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिजनेस ने लोन लिया आईसीआईसीआई बैंक से, कितना, 15% से, कितना लिया, 50 लाख। तो कहां पे बताएंगे ये, अब आप बताएंगे बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे। पहला का बैंक बैलेंस 10 लाख, अभी का लोन 50 लाख, अब बैंक बैलेंस हुआ 60 लाख, कैश तो उतनी है 20 लाख, है ना, तो 20 लाख का कैश, 60 लाख का बैंक बैलेंस, 1 करोड़ का लैंड एंड बिल्डिंग, तो 1 करोड़ 80 लाख हुआ। और लायबिलिटी में 1/30 नहीं, 1/30 आपका कैपिटल और 50 का आप बताएंगे 14% और 15% आईसीआईसीआई बैंक लोन, ये आउटसाइडर्स लायबिलिटी है। आपने लोन लिया ना, पे तो करना पड़ेगा, है ना। सो दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन माय डियर, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। मैंने 2 ट्रांजैक्शन लिए, आपको समझाया कि किस तरह से इंपैक्ट होता है, वो यहां पे उन्होंने बहुत सारे ट्रांजैक्शन देके समझाया, तो डोंट बॉदर, आपको आगे और समझ में आ जाएगा। अगर आपको कहीं पे भी थोड़ी भी दिक्कत है तो आप जरूर पूछ सकते हैं बेटा। सो assets, total assets is equal to total liability in number 1 and total assets is equal to capital plus outsiders liability, that is number 2. Number 3, अब उसको उन्होंने मैथ्स के हिसाब से इधर उधर घुमाया है। हमें पता है मैथ्स में अगर 3 चीजें है तो हम उसका प्लेस बदलेंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, और डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा डिवीजन। सो दिस इज व्हाट इट इज देयर माय डियर, टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, ये बेसिक इक्वेशन है, करेक्ट है। अब इसको मुझे चेंज करना है तो बस मैं क्या करूंगा, साइड चेंज करना है तो मैं लिखूंगा टोटल असेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, बस। अब अगर उसके ऊपर मुझे चेंज करना है तो मैं यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर मुझे मान लीजिए यहां पे आउटसाइडर्स लायबिलिटी, मुझे कैपिटल को बताना है इधर, तो कैपिटल को राइट हैंड साइड में लिखता हूं मैं, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, बस चेंज करते रहो, साइड साइड चेंज करते रहो। इस तरह से समझ में आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत है, यही पे लिख दिया मैंने, आई कैन जस्ट इरेज इट, दैट इज नॉट एन इश्यू। बेसिक इक्वेशन क्या है, टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, और टोटल लायबिलिटीज का डेफिनेशन क्या है बेटा, इंटरनल लायबिलिटीज प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल मतलब आपका खुद का कैपिटल जो आपने कंट्रीब्यूट किया है ना, तो इंटरनल लायबिलिटीज प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटीज का सीधा साधा मतलब है आपका कैपिटल, तो इट इज टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, बस साइड चेंज करते रहिए। और यहां पे दिया है, ये देखिए बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट assets of a business are always equal to the total liabilities and capital, यहां पे दिया है। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है, अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज always equal to the total of its liabilities and capital, and that it is shown assets is equal to liabilities plus capital। उसके बाद आप देख सकते हैं उन्होंने बताया है कैपिटल इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, जो मैंने आपको नीचे भी करके बताया। उसके बाद बताया असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, दैट इज टोटल असेट्स इज इक्वल टू इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या है, अमाउंट विच इज ओड बाय द बिजनेस टू अदर पार्टीज, OWE, तो वो मतलब जिनको देना बाकी है बिजनेस ने, तो बिजनेस जब भी बंद होगा कैपिटल ओनर को वापस देना पड़ेगा, और आउटसाइडर लायबिलिटी जैसे बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है, ये जिनके उनको देना पड़ेगा। पहले आउटसाइडर लायबिलिटी पे करते हैं, बाद में इनसाइडर पे करते हैं, और फाइनली उन्होंने बताया टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। अब उन्होंने एक पूरा क्वेश्चन यहां पे करके बताया बेटा, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑन द सेम, तो वहां पे जरूर आप समझ जाएंगे। ये देखिए पूरा उन्होंने एकदम प्रॉपर करके दिया है, तो कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, जस्ट आप ध्यान दीजिए, है ना। राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000, राहुल ने बिजनेस चालू किया 50,000 रुपए के साथ। सो ऑब्वियसली जैसे हम बोलते हैं हर बार कि यहां पे क्या है, 2 एस्पेक्ट है, व्हाट इज हियर इज नथिंग बट 2 एस्पेक्ट, एंड व्हाट आर द 2 एस्पेक्ट्स माय डियर, 2 एस्पेक्ट क्या है, एक कैश कम्स इन द बिजनेस और दूसरा ओनर इज द गिवर। कैश इज व्हाट, असेट, देखो काम में आ रहा है, ये आइडेंटिफाई करना कि असेट है या लायबिलिटी है, इनकम है, गेन है, एक्सपेंसेस है, लॉस है, ये हमारे काम में आता है, यहां पे भी आ रहा है। तो असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो असेट आपका क्या है,
कैश है, कितना आ रहा है 50,000, कैपिटल भी 50,000 क्योंकि सेम इज इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल, और आउटसाइडर्स लायबिलिटी एज ऑफ नाउ कुछ भी नहीं है, तो प्लस जीरो वहां पे लिखा है, देखिए रुपीज 50,000 कैश, कैपिटल 50,000 प्लस लायबिलिटी जीरो, और फाइनली टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज दैट यू कैन सी हियर, 50,000 इज इक्वल टू 50,000। आप देख पा रहे यहां पे कोई दिक्कत है? तो 50,000 इज इक्वल टू 50,000, और परफेक्ट बताना है तो शेप ड्रॉ करके बताता हूं आपको। यहां पे ये देखिए 50,000 इज इक्वल टू 50,000, ये देखिए दिस इज परफेक्ट नाउ, है ना? तो इस तरह से है, तो दिस वे अराउंड इट इज हैपनिंग, दैट इज टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। आगे देखिए बेटा कैसे दिया है, राहुल परचेस्ड मशीनरी फ्रॉम एचपी कंपनी ऑन कैश रुपीज 10,000। आगे राहुल ने क्या किया, बिजनेस शुरू करने के बाद उसने एक सबसे पहले मशीनरी खरीदी एचपी कंपनी से क्रेडिट पे 10,000 की, मतलब पैसा दिया क्या? नहीं दिया, क्रेडिट पे खरीदी है, क्रेडिट पे खरीदी तो क्या बढ़ा? लायबिलिटी बढ़ा इन टर्म्स ऑफ योर क्रेडिटर। तो यहां पे आउटसाइडर लायबिलिटी आई, लेकिन आउटसाइडर लायबिलिटी के साथ एक असेट भी आया। तो एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन विल हैव एटलीस्ट टू इंपैक्ट्स माय डियर, एंड दोज टू इंपैक्ट्स आर नॉट नेसेसरली ऑन ओनली असेट्स। कभी कभार वो दोनों असेट को इफेक्ट करेंगे, कभी कभार असेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करेंगे। अभी देख रहे एक असेट को और एक लायबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है, चीजें तीन है, लेकिन पहले ट्रांजैक्शन में देखा कैश और कैपिटल आया, आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं। अब ये ट्रांजैक्शन में आउटसाइडर लायबिलिटी आई, अब कैपिटल को कोई इंपैक्ट नहीं, लेकिन असेट आ रहा है। तो पहले वाला असेट और अभी वाला असेट ऐड करेंगे, दोनों असेट बताएंगे। तो ये देखिए बेटा, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो असेट क्या क्या हुए? अभी पहले सिर्फ कैश था, अभी क्या क्या हुआ? अभी कैश पहले का एज इट इज रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं, उसके साथ मशीनरी को ऐड करेंगे हम, तो कैश प्लस मशीनरी। आगे कैपिटल प्लस क्रेडिटर, कैपिटल प्लस आउटसाइडर लायबिलिटी, और वो क्रेडिटर का नाम क्या है? जो भी नाम पार्टी का दिया है वो लेना पड़ेगा। अब बिजनेस में एक सप्लायर होता है या 1000 ऑफ सप्लायर्स हो सकते हैं, देयर कैन बी 1000 ऑफ सप्लायर्स, तो जरूरी नहीं कोई एक सप्लायर हो, वहां पे बहुत सारे सप्लायर है। तो सप्लायर यहां पे कौन है बेटा? दैट इज एचपी कंपनी। तो आपका सप्लायर यहां पे कौन है? एचपी कंपनी है। सो कैश प्लस मशीनरी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एचपी कंपनी। तो कैश आपका 50,000, मशीनरी आपकी 10,000 इज इक्वल टू कैपिटल आपका 50,000, और आउटसाइड लायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एचपी कंपनी इन टर्म्स ऑफ क्रेडिटर। सन्ड्री का मतलब कुछ नहीं है बेटा, सन्ड्री का मतलब बंच ऑफ सप्लायर, क्योंकि बाद में तो बहुत सारा बंच मिला के आप बताएंगे कितना देना है, इंडिविजुअली बताएंगे राम को इतना देना है, श्याम को इतना देना है, गीता को, सीता को, ऐसा बताएंगे। लेकिन टोटल बिजनेस का देना कितना है तो बोलेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, टोटल बिजनेस का आना कितना है तो बोलेंगे सन्ड्री डेटर। इनसे आना है और इनको देना है। सो दैट इज हाउ कैश प्लस मशीनरी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस सन्ड्री क्रेडिटर। यहां पे भी 50 प्लस 10 और इधर भी 50 प्लस 10, तो यहां पे हो गया आपके 60, और ये हो गया टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, दैट यू कैन सी हियर। तो टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी आप देख सकते हैं। यहां पे उन्होंने कंफ्यूजन का चांस उन्होंने नहीं रखा है, बस याद रखना है that every transaction will have at least how many impacts? 2. Not necessarily will be one asset, one liability. Maybe both of the assets, दोनों असेट भी हो सकते हैं, जैसे कि आगे देखते हैं अब कैसे कब होगा ऐसे। राहुल परचेस गुड्स रुपीज 20,000। देखिए राहुल कौन है? ओनर है, ओनर का नाम नहीं आता बिजनेस के अकाउंट में, है ना, क्योंकि उसका खुद का बिजनेस है ना। राहुल परचेस गुड्स रुपीज 20,000। अब कैसे खरीदे गुड्स? बोला क्या? नहीं बोला। किससे खरीदे? बोला क्या? नहीं बोला। So transaction is silent about cash and credit and name of the party is not given. So it is assumed on cash basis by the rule. यानी goods purchased for cash हुआ। goods मतलब क्या? stock. stock of goods आया। stock of goods is what? asset. stock of goods is for business asset, क्योंकि इसी को आप पॉलिश करेंगे, इसी को आप फिर से और कुछ उसमें ऐड करेंगे और प्रॉफिट पे बेचेंगे। तो अभी के लिए स्टॉक ऑफ गुड्स आया, लेकिन फ्री में आया क्या? नहीं, उसके बदले में आपने कैश दिया। मतलब वन असेट इन टर्म्स ऑफ स्टॉक इज इंक्रीजिंग, अनदर असेट इन टर्म्स ऑफ कैश इज डिक्रीजिंग। सो यहां पे लायबिलिटी पे इंपैक्ट है ही नहीं, नीदर ऑन कैपिटल नॉर ऑन आउटसाइड लायबिलिटी, क्योंकि दोनों असेट इंपैक्ट हो रहे। एक असेट बढ़ रहा है कितने से? 20,000 से। क्या बढ़ रहा है? स्टॉक ऑफ गुड्स। दूसरा असेट घट रहा है क्या? कैश गया ना, बिकॉज यू परचेस गुड्स फॉर कैश। तो स्टॉक ऑफ गुड्स ऐड कीजिए और कैश को
माइनस कीजिए, राइट साइड को हाथ मत लगाइए, लेफ्ट में ही चेंजेस कीजिए, मतलब एसेट में चेंजेस कीजिए। देखिए पहले कैश प्लस मशीनरी था, ऊपर देख सकते हैं आप, और नीचे देखिए कैश प्लस मशीनरी प्लस स्टॉक। अब ऊपर वाला कैश 50,000 था, नीचे देखिए ओल्ड बैलेंस कैश का 50,000 प्लस मशीनरी 10,000 प्लस स्टॉक 0, क्योंकि पहले तो स्टॉक नहीं था, इज इक्वल टू पहले का कैपिटल 50 ही है, क्रेडिटर्स 10 ही है, इसमें तो कोई चेंज नहीं। अब ये ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट उन्होंने बताया, न्यू ट्रांजैक्शन से क्या हुआ, कैश जो पहले 50,000 थी, अब आपने उसमें से 20,000 पे कर दिए, तो कैश 20,000 कम हो गई, 50 माइनस 20, अब कैश कितनी बची, तो 30,000। और मशीनरी में कोई चेंज है क्या, नहीं, वो तो एज इट इज कंटिन्यू होगी एज इट इज, जब तक उसमें कोई चेंज नहीं बोलता उसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो कैश 30,000 हुआ, मशीनरी एज इट इज 10,000 की है, और नया आया कैश 20,000 के बदले स्टॉक ऑफ गुड्स। तो सिर्फ असेट के कंपोजिशन में चेंज हो रहा है, लायबिलिटी को राइट में धक्का भी नहीं लगा, देख सकते हैं आप, लायबिलिटी सेम है, 50,000 का कैपिटल है, 10,000 का क्रेडिटर है, तो आप देख सकते हैं 30 प्लस 10 प्लस 20 60, और उधर 50 प्लस 10 60, और न्यू बैलेंस वही उन्होंने रिपीट किया है, 60,000 इज इक्वल टू 60,000। अगर अच्छे से समझना है तो आप यहां से समझ सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आई होप इट इज वेरी क्लियर, गेटिंग एवरीबडी, एनी डाउट इनटू दिस, समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अकाउंटिंग इक्वेशन डालना है, देखना है दो इंपैक्ट कहां पे हो रहे, दोनों असेट पे हो रहे, या एक असेट पे हो रहा है, एक इंटरनल लायबिलिटी पे हो रहा है, एक असेट पे हो रहा है, दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी पे हो रहा है, या दोनों असेट पे हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो दैट वे अराउंड हमें अनबायस्ड होके उसके इंपैक्ट्स देने, बस बाकी कुछ नहीं करना है, एज सिंपल एज दैट। फोर्थ वन नहीं, 3 ही दिए, बताइए ये तीनों में कुछ डाउट है क्या, आप जरूर पूछ सकते हैं बेटा जी। आई होप इट इज वेरी क्लियर, अच्छे से उन्होंने करके दिया है। अब नीचे और एक सम उन्होंने करके दिया है, वो भी पूरा देखेंगे, एंड देन विल ऑब्वियसली हैव अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। मे बी आप आज यहीं पे करेंगे अगर टाइम परमिट करता है तो, है ना? तो दैट वे अराउंड वी आर गोइंग टू सी द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब समझ में आ रहा अकाउंटिंग इक्वेशन? चलिए अगला सम देखते हैं, नीचे वाला। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके कोई डाउट है तो जरूर चैट बॉक्स में लिखिए बेटा जी। देखिए इन्होंने परफेक्ट यहां पे किया है, क्या किया है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। नीचे दिए वाले ट्रांजैक्शन को क्या बताना है आपको, अकाउंटिंग इक्वेशन बताना है। क्या क्या दिए ट्रांजैक्शन, 5 ट्रांजैक्शन है। रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। उसके बाद परचेज फ्रॉम धोनी, क्या बात है, पूरा क्रिकेट है यहाँ पे, रोहित शर्मा, धोनी, विराट भी है आगे, है ना? तो पूरा क्रिकेट है यहाँ पे। देखिए वन बाय वन, अब ट्रांजैक्शन दिखाता नहीं, मैं आपको आंसर ही दिखा देता हूं यहाँ पे। ये देखिए, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छे से प्रेजेंट किया है, उन्होंने क्वेश्चन भी दिया है साथ में और आंसर भी दिया है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन लेते हैं और राइट में ही उन्होंने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया, अच्छे से बनाया। देखिए टोटल असेट्स इज इक्वल टू आउटसाइडर्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आप ऐसे लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना? आपके लिए ऐसा लिखना जरूरी है, टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी और आउटसाइडर्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सीक्वेंस चेंज कर दो, कोई दिक्कत है नहीं। यहां पे देखिए सबसे पहले दिया है रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। रोहित शर्मा ने बिजनेस चालू किया 50,000 कैश के साथ। तो सबसे पहले क्या आएगा, कैश आएगा के फॉर्म में। तो कैश देखिए असेट में 50,000। अब उन्होंने यहां पे मेंशन नहीं किया है, ऊपर उन्होंने आपको मेंशन किया था, क्लियरली बताया था कि कौन सा असेट आ रहा है। अब यहां से उन्होंने मेंशन करना बंद कर दिया है। तो 50,000 का कैश, आगे आउटसाइडर लायबिलिटी 0, क्योंकि अभी तो सिर्फ कैपिटल आ रहा है। तो देखिए कैपिटल में 50,000 डाला, 0 प्लस 50,000, तो राइट हैंड साइड में 50 प्लस 0 मतलब 50 और लेफ्ट में 50, तो टोटल 50,000 इज इक्वल टू 50,000। दैट इज व्हाट ट्रांजैक्शन नंबर 1। ट्रांजैक्शन नंबर 2, धोनी परचेस गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट ₹10,000। कैसे खरीदे बेटा, क्रेडिट में, मतलब धोनी आपका सप्लायर है, धोनी आपका सप्लायर है, जिससे आपने गुड्स खरीदे वो भी क्रेडिट में। पैसा पे किया क्या, नहीं। कब पे करेंगे, फ्यूचर में, अभी तो नहीं किया है, बिकॉज ट्रांजैक्शन इज साइलेंट। क्लियरली बोला है क्रेडिट, तो साइलेंट भी बोल नहीं सकते, है ना? तो क्रेडिट पे खरीदा धोनी से, तो क्या बढ़ा आपका तो स्टॉक ऑफ गुड्स बढ़ा, और उसी के साथ सप्लायर बढ़ा, क्रेडिटर बढ़ा, आउटसाइडर लायबिलिटी बढ़ा। मतलब पहले का कैश 50,000 देखिए एज इट इज, प्लस स्टॉक ऑफ गुड्स 10,000 ऐड करेंगे, इज इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटी में 10,000 ऐड करेंगे, कैपिटल में कुछ ऐड नहीं करेंगे। तो कैपिटल के नीचे आप देख सकते हैं यहां पे 0 लिखा है बेटा। क्यों? क्योंकि कैपिटल में कोई एडिशन नहीं है।
अब 50 प्लस 0 50 आया नीचे, ये देख सकते हैं यहां पे, और यहां पे 0 प्लस 10 ये 10 आया, और इधर 50 प्लस 10 आपका 60 आया, मतलब 60 इज इक्वल टू 60 दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इज इक्वल टू 60 बिकॉज assets is equal to capital plus outsiders liability. This way around it is done very properly my dear. अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा properly करके आपको बताया। तीसरा ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट। अब पहले का चेंज कुछ नहीं करना है, पहले का एज इट इज रखना है, जहां पे चेंज हो रहा है उसी में चेंज करना है, बेसिक को हाथ नहीं लगाना है। जैसे कि कैपिटल 50,000 ही है, पहले ट्रांजैक्शन में भी 50 था, दूसरे में भी 50 है, जब तक अब उसमें कुछ एड लेस नहीं होगा उसको धक्का नहीं लगाएंगे। ऑब्वियसली उस पे इंपैक्ट आएगा तो उसको एड लेस करेंगे, उस पे इंपैक्ट नहीं आएगा तो एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। अब आपने विराट को गुड्स बेचे, वो भी क्रेडिट पे 20,000 के, अब आपके 20,000 के गुड्स चले गए, है ना, और लेकिन एट द सेम टाइम आपको पैसा मिला क्या? नहीं मिला। पैसा नहीं मिला तो क्या? ट्रांजैक्शन इज ऑन क्रेडिट एंड देयर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड एज फ्यूचर मनी विल बी रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ डेटर। आपको पैसा फ्यूचर में मिलेगा, डेटर से, विराट से कितना मिलेगा? 20,000। यानी एक असेट बढ़ा, कौन सा? डेटर बढ़ा 20,000 से, और दूसरा असेट घटा, कौन सा? गुड्स घटे 20,000 के। यानी स्टॉक ऑफ गुड्स को 20,000 से माइनस कीजिए और डेटर को 20,000 से ऐड कीजिए। नो इंपैक्ट ऑन राइट हैंड साइड। ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने क्या किया बेटा? गुड्स बेचे, कितने के बेचे? 20,000 के, क्रेडिट में बेचे विराट को, तो आपका लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट ही नहीं है। असेट क्रिएट हुआ यहां पे डेटर, क्योंकि पैसा फ्यूचर में मिलेगा, आपने क्रेडिट में बेचा है ना, एक्सटर्नल लायबिलिटी पे इंपैक्ट है। क्यों? क्योंकि आपने गुड्स बेचे, मतलब आपके गुड्स तो चले गए, पैसा आया क्या उसके बदले में? बैंक बैलेंस आया, कैश आया क्या? ना कैश आया ना बैंक बैलेंस आया, तो क्या आया? डेटर आया। द कस्टमर टू हुम गुड्स हैज बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस मनी इज येट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम देम। तो देखिए 60,000 ऊपर का एज इट इज लिया, माइनस 20 प्लस 20, माइनस 20 किस चीज का? स्टॉक ऑफ गुड्स का, प्लस 20 किस चीज का? डेटर्स का। समझ में आ रहा है? तो 20,000 के गुड्स चले गए और 20,000 का डेटर बढ़ गया, तो 60 माइनस 20 प्लस 20, माइनस 20 प्लस 20 तो अपने आप कैंसिल हो गए, बचा क्या? 60 ही बचा। राइट में तो कोई चेंज नहीं है, 10 प्लस 0 50 प्लस 0 है, देख सकते हैं आप, ये देखिए 10 प्लस 0 और नीचे 50 प्लस 0, तो कोई चेंज नहीं है एज फार एज दिस वन इज कंसर्न। इज दैट वेरी क्लियर? हाँ, ये क्वेश्चन है कि गुड्स खरीदे 10,000 के और बेचे 20,000 के। मे बी यू कैन से दैट दे हैव गिवन इट रॉन्गली दिया होगा उन्होंने, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 20,000 के गुड्स आपके बिजनेस से गए तो 20,000 का डेटर भी बनाए जो पैसे आपको फ्यूचर में देगा। तो एक असेट बढ़ा 20,000 का डेटर के फॉर्म में, दूसरा असेट घटा स्टॉक ऑफ गुड्स 20,000 के फॉर्म में। नो इंपैक्ट ऑन राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड पे कोई इंपैक्ट हमने नहीं दिया। तो इस तरह से हर बार इसको आप ऊपर की तरफ ऐड करके भी बता सकते हैं। ये देखिए ऐसा प्रॉपर, कैश प्लस मशीनरी प्लस स्टॉक इज इक्वल टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर प्लस बैंक लोन प्लस व्हाटएवर लायबिलिटीज आर देयर, उस तरह से भी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आप थरो हो जाएंगे तो आप ये भी करने में आपको कोई दिक्कत होने वाली। There is one rule, whenever cash is paid or received in a business, in terms of accounting equation उसका impact कैसे देना है। अकाउंटिंग इक्वेशन में जब भी आप कैश पे करते हैं, कैश रिसीव करते हैं, जब भी आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है किसी भी चीज पे, शेयर्स बेचने पे, आपके असेट बेचने पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो याद रखना उसका इंपैक्ट, जो भी कैश का इंपैक्ट आपको देना है, कैश का इंपैक्ट असेट में तो रहेगा, बैंक बैलेंस का इंपैक्ट असेट में तो रहेगा, प्रॉफिट का इंपैक्ट ऑब्वियसली असेट में रहेगा बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग योर वैल्यू ऑफ असेट। का इंपैक्ट कहां पे रहेगा? ऑब्वियसली ऑन योर कैपिटल, क्योंकि लॉस से आपका कैपिटल घटता है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है। याद रखना, प्रॉफिट और लॉस हुए तो आपको असेट में तो इंपैक्ट देना ही पड़ेगा कि कौन सा असेट प्रॉफिट में बेचा या लॉस में बेचा, वो तो लेफ्ट हैंड साइड में असेट में आएगा, राइट हैंड साइड में उसका इंपैक्ट प्रॉफिट लॉस का देना है सीधा कैपिटल पे। उसी तरह का कैश का रूल है बेटा, एनीवेयर कैश इज पेड एंड रिसीव्ड, इंपैक्ट शुड बी गिवन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एज वेल। आप आगे देख सकते हैं, बताता हूं मैं, यहां पे डिविडेंड रिसीव्ड दिया है 500 रुपए, डिविडेंड कितना मिला? 500 रुपए। डिविडेंड इज व्हाट? रिसीव्ड मतलब इनकम है ना, तो इनकम मिला या एक्सपेंसेस पे किए, तो मिला है तो कैश में ऐड करो और पे किया तो कैश से माइनस करो, बड़ा सिंपल है, ये तो समझ में आ रहा है आपके, है ना।
क्योंकि यू रिसीव्ड कैश तो कैश बढ़ गई, यू पेड कैश तो कैश घट गई। अब उसी तरह से कैपिटल में से भी आपको माइनस प्लस करना है। क्यों? बिकॉज दिस इज पेड फॉर एक्सपेंसेस, बिकॉज देर इज प्रॉफिट, बिकॉज देर इज लॉस। तो आप देख सकते हैं 60,000 माइनस 500 किया। क्यों? कैश बैलेंस 60,000 प्लस 500 किया, सॉरी कैश बैलेंस बढ़ गया क्योंकि आपने डिविडेंड रिसीव किया है। और ये 500 और कहां पे बढ़ेंगे? ऑब्वियसली आपको इनकम मिला है तो आपका ऑब्वियसली यहां पे आपको कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, या तो अलग से इनकम और गेन आपको राइट में हेड ऐड करना पड़ेगा। ऐसा भी कर सकते हैं, असेट्स प्लस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी प्लस इनकम एंड गेन, ऐसा हेड कर सकते हैं। या तो ये एक मेथोडोलॉजी है, यानी एक एक चीज ऐड हो गई। कौन सी ऐड हो गई? लेफ्ट में ऐड हो गई टोटल असेट्स में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, याद रखना। और राइट में क्या ऐड हुआ? इनकम एंड गेन्स। इस तरह से करना पड़ेगा, बट ये कंफ्यूज करता है यूजुअली। इससे बेटर क्या है कि आप सीधा सीधा कैश पे कर रहे हो तो कैपिटल में से माइनस करो, कैश रिसीव करो तो कैपिटल में ऐड करो। उसी तरह से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी एसेट एनी इन्वेस्टमेंट है तो कैपिटल में ऐड करो, बिकॉज प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल। और उसी तरह से लॉस हो रहा है तो कैपिटल को माइनस करो। ये तो कैपिटल का इंपैक्ट हुआ। और इसका इंपैक्ट कहां पे आएगा? नेचुरली ऑन असेट। क्यों? क्योंकि आपने असेट बेचा, प्रॉफिट पे बेचा, लॉस पे बेचा, ये दूसरी बात है, लेकिन आपने असेट बेचा, इन्वेस्टमेंट बेची, उसी के साथ आपने कैश पे किया, कैश रिसीव किया, मतलब असेट पे इंपैक्ट आना पक्का है। तो डिविडेंड देखिए बेटा, 500 रुपए ऐड किया है किसमें? कैश में, असेट साइड में, और वही 500 रुपए लायबिलिटी में कैपिटल में ऐड कर दिए। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनीवेयर कैश इज पेड, कैश इज रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल, लॉस ऑन सेल should be considered in terms of asset increase and decrease as well as capital increase and decrease depending on the transaction. Clear है? क्योंकि प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, लॉस होगा तो कैपिटल घटेगा। पे कर रहे आप एक्सपेंसेस तो आपका कैपिटल घटेगा, और आप रिसीव कर रहे इनकम तो कैपिटल बढ़ेगा। इसलिए डिविडेंड रिसीव्ड देखिए 60,000 प्लस 500 असेट में, और लायबिलिटी में आप देख सकते हैं आउटसाइडर लायबिलिटी में 10,000 प्लस 0 किया है, यहां पे कोई चेंज नहीं है। लेकिन यहां पे देखिए 50,000 प्लस 500 कर दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला आपको कैश पेड और कैश रिसीव्ड का दूसरा इंपैक्ट हम कहां पे लेते हैं? तो हम कैपिटल में लेते हैं। एंड लास्ट ट्रांजैक्शन एडवर्टाइजमेंट पेड, देखो दोनों बताए इन्होंने, बड़ी अच्छी बात कर दी इन्होंने। पे किए वाला बताया और रिसीव किए वाला बताया। अभी रिसीव किए वाला ऊपर था, पे किए वाला नीचे है। सो एडवर्टाइजिंग पेड इन 500 कैश, फिर से कैश गई 500 तो 500 माइनस करो कैश में से, असेट में से, और वही 500 माइनस करो आपके कैपिटल में से। वेरी गुड। देखिए बेटा 60 500 माइनस 500, फिर से 60 आया, और इधर एक्सटर्नल लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं है, आउटसाइडर लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं है, वो 10,000 ही है। लेकिन कैपिटल 50 500, उसमें से 500 गए एडवर्टाइजमेंट के लिए पे हुए। तो फाइनली अकाउंटिंग इक्वेशन, टोटल असेट 60,000, आउटसाइडर लायबिलिटी 10,000, capital is 50,000. This is how the accounting equation is going to match, my dear. बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसमें कोई डाउट है तो आप जरूर बताइए बेटा, और ऑफलाइन स्टूडेंट्स अंश, पूनम, स्नेहा, अमर, वैष्णवी, ध्वनि, अंजन, बताइए कोई डाउट है क्या बेटा? इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज लेट मी नो सो दैट वी कैन रिजॉल्व इट। आई होप यू आर गेटिंग दिस। विद दिस वी आर फिनिशिंग टुडेज क्लास, माय डियर। डू रिमेंबर टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। ये कौन बोलता है? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट एज वेल एज द बेस इज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। और दूसरा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी एंड outsiders liabilities are bank loan, creditors and so on. I hope you are enjoying this particular lecture. See you tomorrow for the next part. But before winding up, do remember आपको ये दूसरा और तीसरा सम घर से देख के आना है, एंड दैट इज पेज नंबर 35, है ना? पेज नंबर 35 आपको देख के आना है, और बाकी का अपन यहां पे करेंगे। आपको बस क्रॉस चेक करके कल एक सम और एक अकाउंटिंग इक्वेशन का हम यहीं पे सॉल्व करेंगे, सो दैट आपको कोई दिक्कत आ रहे। तो आपको सम नंबर ये 34 एंड 35, 36 भी देख सकते हैं, तीनों सम देख लो, कुछ ज्यादा तो है नहीं, 3-4 सम उन्होंने दिए। देखने में क्या हर्ज है? जो नहीं समझ में आ रहा अपन कर लेते हैं। ये सम अपन करेंगे यहां पे, ये सम अपन यहां पे करेंगे एक्टिविटी 4। कोशिश करो आप करने की, है ना? आप करके आओ।
तीनों देख लो ऊपर, समझ लो, और उसके बाद अगला सम कर लो, है ना। Practice makes the man perfect. With this, we are ending today's lecture. Thank you and have a wonderful evening ahead. God bless you.